فیصل آباد کے عوام پر وفاقی حکومت کی جانب سے ریلیف کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز کو خالی کرنے کا حکم جاری۔ ملازمین نے سٹورز کو خالی کرنا بھی شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 12 جولائی تک 40 سٹورز اور دوسرے مرحلے میں باقی تمام سٹورز بند کر دیے جائیں گے۔ 300 سے زائد ملازمین بے روزگار ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد کے عوام پر وفاقی حکومت کی جانب سے ریلیف کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ملازمین نے سٹورز کو خالی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 12 جولائی تک 40 سٹورز اور دوسرے مرحلے میں باقی تمام سٹورز بند کر دیے جائیں گے۔ 300 سے زائد ملازمین بے روزگار ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں۔ توبہ سے مبشر حسن اور فیصل آباد سے عمر رانجھا نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیصل آباد سے عمر رانجھا نے ہمیں جوائن کی۔ جی عمر رانجھا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، فیصل آباد میں وفاقی حکومت کی جانب سے جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا، تو فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ عملے کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو خالی بھی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ 40 سٹورز کو 12 جولائی تک جو ہے وہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے مرحلے میں باقی مزید جو 40 ہیں ان کو بھی 20 جولائی تک جو ہے وہ تمام سٹورز خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح بات کی جائے تو 80 سٹورز پر 300 سے زائد ملازمین جو یہاں پر نوکری کرتے تھے وہ بھی ان کو بھی نوکری سے برخاست کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، اور فیصل آباد کے 80 سٹور سے 300 سے زائد ملازمین کو جو ہے وہ نوکری سے ہاتھ دھونے کا جو ہے وہ خدشہ لائق ہے۔ اسی طرح بات کی جائے تو سٹور سے ملنے والی اشیاء خوردونوش جو ہے وہ جس میں ریلیف شہریوں کو دیا جاتا تھا، وفاقی حکومت کی جانب سے اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ مکمل پلان تیار کر لیا گیا، اور مرحلہ وار فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز پر عملے کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کا جو سامان ہے اس کو بھی پیک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ فیصل آباد سے عمر رانجھا ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اب ہم رک کریں گے توبہ ٹیکسنگ سے، جہاں پر مبشر حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی مبشر، بتائیے گا توبہ کی کیا صورتحال ہے؟ توبہ ٹیکسنگ کی بات کی جائے تو جھنگ اور توبہ ٹیکسنگ ایک ہی ریجن میں ہے، اور یہاں پر 50 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جن کو مکمل طور پر خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکسنگ کے تمام تر یوٹیلیٹی سٹورز میں اس وقت عملہ موجود ہے، اور اس سٹورز میں سامان کو پیکنگ کی رہی ہے، اور یہ سامان جھنگ ریجن میں منتقل کیا جائے گا، جہاں پر بعد ازاں اس تمام تر سامان کی نیلامی ہوگی۔ توبہ ٹیکسنگ اور جھنگ کی بات کر لی جائے تو تقریباً 300 سے زائد ملازمین جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو احکامات موصول ہو چکے ہیں کہ تمام تر سٹورز کو جو خالی کیا جائے، سامان کو پیک کیا جائے۔ اس حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے ایسے سٹورز جو کرائے کی بلڈنگ ہیں ان کے مالکان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ سٹورز کو خالی کر رہے ہیں، اور ان کے تمام تر واجبات کو بھی اسی ماہ تک کلیئر کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں، خریدار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سٹورز میں خاصا ان کو ریلیف مل رہا تھا، حکومت نے ان سے ریلیف کی ہے، سہولت چھین لی ہے۔ ایک شہری موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ سٹورز میں تو آپ آئے ہیں تو کچھ بھی موجود نہیں کچھ نہیں ہے، سودا لینا ہے کوئی شاید نہیں ملی اتنے، سارے بند کرتا سامان۔ غریباں واسطے یہ سی کہ سہولت ہی آیا سی، کوئی سستا مال مل جاتا سی، بند اپنا فیصلہ واپس لیا جائے، عوام نے سہولت دیتی جائے۔ بالکل، یہ وہ سٹورز ہیں جہاں پر کل تک ان کے ہر ریکس میں سامان موجود تھا، اشیاء موجود تھی، اشیاء کی قیمت قلت بھی یوٹیلیٹی سٹورز کی بندی سے سینکڑوں ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ توبہ کے باقی ماندہ تمام 50 یوٹیلیٹی سٹورز بھی 15 جولائی تک خالی کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سامان کی پیکنگ شروع کارپوریشن نے پراپرٹی مالکان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ فیصل آباد سے عمر رانجھا اور توبہ سے مبشر حسن ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں ہیڈ تریموں پر پانی کی سطح میں کمی آ گئی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق آج پانی کی آمد 47,392 جبکہ اخراج 34,592 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز آمد 53,000 اور اخراج 41,000 کیوسک تھا۔ سیلابی صورتحال کا کوئی خطرہ نہیں، ہیڈ تریمو ڈویژن نے تسلی دے دی۔ ہیڈ تریمو ڈویژن کے مطابق صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے اور پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق جاری ہے، تاہم مسلسل نگرانی کا عمل جاری رکھا جا رہا ہے۔
रवा माली साल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर डीम टैक्स का मामला। एक साल में मुल्क से 183 दिन बाहर रहने वाले शहरियों पर डीम टैक्स लागू नहीं होगा। मजीद तफसील जानने की उम्मीद रस्मत से। जी उमर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से अच्छी खबर यह है कि एफपीआर की जानिब से रवा माली साल के दौरान भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो टैक्सेस में मिलने वाला रिलीफ है वो बरकरार रखा गया है। ताहम इस हवाले से वो तमाम पाकिस्तानी जो कि रोज़गार के लिए या किसी दूसरी अपने मामलात के लिए बैरून मुल्क मुकीम हैं और वो एक साल के अंदर यानी कि माली साल रवा माली साल के अंदर या गुज़श्ता माली साल के अंदर 183 दिन तक पाकिस्तान से बाहर रहे हैं तो उनको नॉन रेजिडेंट्स या ओवरसीज पाकिस्तानियों का स्टेटस मिलता है और उन पर टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। इसके लिए जो मुतल्लिका शहरी हैं उनको अपना मुल्क से 183 दिन तक बाहर रहने के सबूत फराहम करना होगा, जिस पर के बाद उन पर डीम्ड टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। डीम्ड टैक्स जो है वो शहरियों की जो 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी जो कि उनके अपनी ज़ाती इस्तेमाल में है उसमें टैक्स छूट है, जो कि बाकी मानिदा प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डीम्ड टैक्स का इत्तलाक होता है। ताहम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उस डीम्ड टैक्स से भी इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन इसके लिए उनको अपने नॉन रेजिडेंट होने के सबूत फराहम करना होंगे। बहुत शुक्रिया मेरा आगाह करने के लिए। फैसलाबाद सीवरेज के मसाइल जूं के तूं ABC रोड गुलशन हयात की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। बदबू और ताफुन से इलाका मकीन परेशान, शहरियों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं फसीह नकवी से। बिल्कुल, ये शहर फैसलाबाद का गुलशन हयात ए ब्लॉक है जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से सीवरेज के मसाइल मौजूद हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गलियों के बिल्कुल सामने जो है सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। मेरा कैमरामैन इशफाक बुखारी दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि एक जानिब मुकम्मल वो घर हैं और बिल्कुल आगे तक जो है वो सीवरेज का पानी मौजूद है। बारहा वासा को कॉल करने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर किसी भी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। आप थोड़ा सा आगे जब बताएं जरा, कब से यही सूरत हाल है? ये तकरीबन 4-5 दिन से ऐसे ही ये चल रहा है। बारिशों का ना पानी इकट्ठा हो जाता है इधर, और वैसे भी गटरों का पानी निकलता है। सड़कों का भी आप हाल देख लें, इधर कोई रहने वाला कोई इधर ना कोई अमल नहीं है, कोई इधर ना कोई। तो बारिश के अलावा भी यहाँ पर सीवरेज बारिश के अलावा भी सीवरेज सिस्टम का यही हाल है इधर। ये बच्चे भी मौजूद है, बच्चे भी इधर खेलते हैं। आप बताइएगा कि कितनी मुश्किलात का सामना रहता है जब सीवरेज का? तकरीबन असी ਜਦੋਂ भी दूसरा बारिश आती है उदों ही असी दूसरा परेशान होंगे हैं। उस तो इलावा भी दूसरा सीवरेज बंद ही रहते हैं। गड्डी वाले कहिए नहीं आता, तो बाद फिर लोग अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते करते हैं। बाकी असी ये टेंशन 4-5 दिन हो गए। अब ये कितने दिनों तक निकलेगा पानी, कि ऐसे ही रहेगा? ऐसे रहेगा जब तक कोई इंतजाम नहीं होता। अपनी मदद आपके तहत ही हम निकालते हैं। आगे स्कूल है, एजुकेटेड स्कूल है, फिर विजडम स्कूल है। बच्चों को आने जाने का इतना मसला होता है इधर। ठीक है, इधर हमारे जो MP MN इनके पास भी 3 दफा गए हैं। वो बस ऐसे कहते हैं कि भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, बस फंड लेके खा जाते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। जी बिल्कुल, आपके सामने है कि यहाँ पर जो है सीवरेज मसाइल फैसलाबाद में ये नहीं कि बिल्कुल नए हैं, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में, बेशतर इलाकों में सीवरेज मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। ये गुलशन हयात है, यहाँ पर जो है वो आप सुन सकते हैं कि इलाका मकीन खासे परेशानियां से गुजरना तक मुहाल हो चुका है और यह मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो बेहतर किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर रहने वाले जो इलाका मकीन है वो सुख का सांस ले सकें। जी फसीह नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद में साइलिन की शिकायत बढ़ने लगी। अफसरों को सीटों पर बैठकर फराइज की अंजामदही मुश्किल लगने लगी। आज 27 साइलिन शिकायत लेकर पहुंचे मगर ADCR सीट पर न मिले। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आए साइलिन मायूस होकर वापस लौट गए। मजीद बात करेंगे इस हवाले से अब्दुर्रहमान से। बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इश्यूज के हवाले से तो यहाँ पर तारीख का जो सिलसिला है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी 27 केसेस मौजूद है लेकिन ADCR मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूगो भी अपनी सीटों पर मौजूद नहीं होते, जिस वजह से शदीद मसाइल का सामना रहता है। तो यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो इम्तियाज साहब बताइएगा क्या वजूहात बनती हैं कि जब अफसरान मौजूद नहीं होते तो लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आज जो है वो 27 केसेस लगे हुए थे जो कि सबसे कम है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी तक ADCR साहब जो है ना वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है।
इसी तरह जो पिछला जून का महीना था उसमें बहुत ज़्यादा जो थे वो केसेस थे अपना रिकवरी के हवाले से। उन्होंने तहसीलदार ने, उन्होंने एसी वगैरह ने, डीसी वगैरह ने बहुत मेहनत से जो रिकवरी इकट्ठी की है और लोगों ने दी भी है, लेकिन उसके बरक्स हम सहूलतें देखें तो सहूलतों का बहुत ज़्यादा फकदान है। EDCR साहब नहीं आए, अवाम मौजूद है, साइलिन मौजूद है, बड़ी दूर दराज से आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो रजिस्ट्रियों के हवाले से अभी तक बयान नहीं शुरू हुए, ना शेड्यूल अपडेट हुआ है, ना DC रेट जो है वो क्लियर हुआ है, जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जहाँ पर शेड्यूल रेट 20 लाख था वहाँ पर 2 करोड़ कर दिया, जहाँ पर 2 करोड़ था वहाँ पर जो 15 लाख कर दिया। इस तरह की बहुत सारी गलतियां जिसका जो है ना वो खमियाजा वो अवाम मुफ्त रही है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अफसरान की गलतियों का खमियाजा, अफसरान की गैर हाजिरी का खमियाजा बिलाखिर साइलिन को ही भुगतना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। MC डिस्कोट और MC चक जुमला में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने कमिश्नर ऑफिस से मंजूरी मांग ली। MC डिस्कोट में 18 करोड़ रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन होगी। MC चक जुमला में ब्यूटिफिकेशन पर 8 करोड़ रुपए लागत आएगी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। म्यूनिसिपल कमेटी डिस्कोट और म्यूनिसिपल कमेटी चक जुमरा में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में इन दोनों स्कीमों पर ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी तलब की गई है और 18 करोड़ से ज़ायद की लागत से फैसलाबाद डिस्कोट तांदरेवाला रोड की ब्यूटिफिकेशन का अमल किया जाएगा। स्कीम ADP में शामिल है। इसका जो PC1 है वो MC डिस्कोट की जानिब से कमिश्नर ऑफिस को साल किया गया था। इसके साथ साथ MC चक जुमरा की जानिब से भी जो है वो तमाम तरह ब्यूटिफिकेशन की स्कीम के हवाले से डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद ऑफिस को तफसीलात अरसाल की गई हैं। इन दोनों सड़कों, दोनों MC कमेटीज़ में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में मंजूरी दी जाएगी, जिसको कमिश्नर फैसलाबाद शेयर करेंगी। अभी दोनों के जो PC1 है वो भिजवा दिए गए हैं और मंजूरी के हवाले से मरासला जारी करते हुए सजा की गई है। CBA यूनियन PHA की जानिब से DG PHA को चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। जायज मुतालबात न मनने पर काम छोड़कर हड़ताल का इंदिया दे दिया। मज़ीद जानते हैं वकास बेग से। जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में काम करने वाले मुलाजमीन के हकूक उनको दिए जाएं, ऐसा मुतालबात किए गए हैं पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में CBA यूनियन की जानिब से, जिनका ये कहना है कि लाहौर की तर्ज पर न सिर्फ यूटिलिटी अलाउंस फराहम किए जाएं बल्कि फैसलाबाद में ही वासा और FDA की तर्ज पर जो है मुलाजमीन को सहूलियात फराहम की जाएं। चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है CBA यूनियन की जानिब से जमा करवाया गया है डायरेक्टर जनरल PHA को, और चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर जो है अमल दरामद न होने की सूरत में हड़ताल के हवाले से भी ऐलान किया गया है। सदर CBA यूनियन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि यासिर साहब ये बताइएगा, चार्टर्ड ऑफ डिमांड दिया गया है, अफसरान से मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं मुलाजमीन के लिए, मुतालबात मंजूर ना हुए तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, CBA यूनियन 1 साल पहले रेफरेंडम जीत कर आई थी और 1 साल कबल हमने मोहतरम DG साहब को चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, जिस पर आज तक 1 साल गुजरने के बावजूद कोई अमल दरामद न हो सका। हमारे चंद एक मुतालबात हैं। महंगाई के इस दौर में जो सहूलियात PHO लाहौर को दी जा रही हैं, वासा FDA ले रहे हैं, उनके गरीब मुलाजमीन ले रहे हैं, वो हमें भी दी जाएं। यूटिलिटी अलाउंस और PHA अलाउंस जो वासा और FDA 100% ले रहे हैं, हमें भी 100% दिया जाए। हमारे मेडिकल के इशू हैं, हमारे एक मुलाजम को नामंजूर होने की सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला CBA यूनियन अपना एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का हक महफूज रखती है और जो इधर अदारे में जो बद इंतज़ामी हो रही है हमने वो भी DG साहब को बताई है, उस पर भी वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो मामलात रुकेंगे तो ही गरीब मुलाजमीन को ये सहूलियात फराहम हो सकेंगी। अच्छा बिल्कुल, जब बदअनवानी मुबैना तौर पर जारी है PHA में, उस हवाले से भी निशानदेही की गई है CBA यूनियन की जानिब से, जिनका ये कहना है कि अगर तमाम तर चार्टर ऑफ डिमांड पर लिखे गए मुतालबात जो है वो पूरे नहीं किए जाते तो फिर PHA वर्कर यूनियन जो है बाकायदा एहतजाज करेगी और काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।